जिया वैद्या, जिन्होंने बहुत ही छोटी सी उम्र में एक ऐसे कलाकार के साथ काम किया है जो आज की तारीख में धुरंधर के नाम से कहलाए जाते हैं। रणवीर जी के साथ पहली बार काम करने में कैसा लगा? So I was so excited and nervous at the same time. And apparently somebody told him कि ये बहुत excited है आपको मिलने के लिए and she's very nervous. So I was standing and he came from behind and he hugged me. तो ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो गर्ल्स आर हैविंग अ टफ टाइम इन इंडिया रिलेटेड टू बॉयज? I think. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू युद्धक्वेक। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो एक ऐसे कलाकार के साथ है जिन्होंने बहुत ही छोटी सी उम्र में एक ऐसे कलाकार के साथ काम किया है जो आज की तारीख में धुरंधर के नाम से कहलाए जाते हैं। शी इज़ नन अदर देन जिया वैद्या। आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यंग पर्सन एज अ गेस्ट, क्योंकि मैंने देखा है कि हमारी जो प्रीवियस जनरेशन है विद इन इंडिया वो बोल्ड स्टेप्स लेने में बहुत कतराते थे। Unlike those generation, this generation is full of confidence, full of energy and full of dynamic attitude. So I am very glad that such a person is a part of our show, which is युद्धक्वेक। हमारा जो पॉडकास्ट है जिसका नाम है युद्धक्वेक, इसका एक ही उद्देश्य है कि हम अपनी यूथ को इंस्पायर करें और उनको एक मंत्रा के साथ रूबरू कराएं कि डिसिप्लिन इज ग्रेटर देन मोटिवेशन। क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी है लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट है और डिसिप्लिन की वजह से आप अपनी कोई भी गोल को अचीव कर सकते हैं। सो नॉट वेटिंग फर्दर, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विद जिया। हाय जिया। Hi. हाउ आर यू? I'm fine. How are you? Very nice. Thank you for accepting the offer for the podcast. My pleasure. And it is a delight that you are there in this podcast. And I saw Jayesh Bhai Jordar. This was a remarkable movie, like all the movies of Ranveer ji. Definitely. And he's a personality who brings strength to the youth. And my purpose to start this objective to start with this podcast was to create an ignite within the youth. Because I believe that when things are happening for a very long time और ऐसी चीज़ें होती हैं जो जड़ों तक घुस जाती है, उसको बदलने में एक क्रांति की ज़रूरत होती है, तो वो यूथ ही ला सकती है। And when I see people like you getting into this industry, working so hard, having so fresh mind, fresh thoughts, and working towards their goal with consistency, so I am very happy about it. Thank you so much. So all the best for all your future endeavors. Thank Let's start the podcast with your journey, how it all started. फिल्म की दुनिया में आने का कारण क्या था, and something about your family also. I think Karan तो it was definitely my mom because I started when I was 6 years. मतलब मैं 6 साल की थी तब से I think she saw that ये expressions दे रही है, ये काफ़ी expressive है and stuff. तो she put me to an audition. Like एक I think in her office there was somebody who was coordinating these auditions for ads and stuff. So she just put me, she like took me to अंधेरी में ही होते हैं auditions. I think अभी तो सब online हो गया है. So she took me to this audition and the first audition I gave, I got selected. But we couldn't do it because of some issue at home or some function we had, so we couldn't do it. Then I think I gave like couple of auditions and then I got selected for my first ad, which was Flipkart. Okay. And after that we kept on giving auditions. We went to Andheri, Oshiwara, so many auditions. And I got couple of ads which were, I think my first ad was Flipkart. Then I did Flipkart का दूसरा ad, पता है वो छोटे बच्चे बड़े बनकर आते थे Flipkart पे. Like it's been like around 15 years back. Yeah, no, not 15 years, 10 years. 10 years back. Long time back. Yeah. Then I did a couple of other brand ads and stuff, and then I got then I did a web series with Swara Bhaskar, which was It's Not That Simple. I was her kid on Woot. And then I got Jayesh Bhai Jordar, which was a YRF banner, Yash Raj Films banner.
and we just went for an audition. And actually fun fact, हम वो audition से निकलने वाले थे क्योंकि वो बहुत late हो गया था, and they actually wanted a Gujarati person. अच्छा. तो फिर उन्होंने बोला कि मतलब लेट हो गया है, तो वी वर लाइक कि हम तो निकलने वाले हैं, बट हम लोग इधर तक आए हैं बिकॉज वी स्टे इन साउथ बॉम्बे, सो वी वर लाइक कि इधर तक आया तो दे देते ऑडिशन. दे दिया, देन वी वर कॉल्ड टू द YRF office, and then there were so many auditions after that, after getting shortlisted in YRF. Acha, after getting shortlisted. After getting shortlisted, I think Shanu was taking our auditions because she's the casting director of Yash Raj. Okay. And there were so many auditions. Then there were so many auditions with the director, which was Divyang sir. And then finally there were workshops, and in one of the workshops they told me that I'm selected. And हमने You're saying कि shortlisting के बाद भी वो auditions बाहर भी बहुत auditions, because it's a big banner, no? So there were so many auditions. मतलब अहमदाबाद से इतनी लड़कियों को ऑडिशन किया था, इधर से इतनी लड़कियों से ऑडिशन किया था, फिर वो लोग ने इतने टाइम बाद कास्ट किया, एंड देन देयर वर अ लॉट ऑफ वर्कशॉप्स एंड डायलेक्ट एंड ऑल ऑफ दैट. ये काफी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है तो ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम. और शॉर्टलिस्टिंग आल्सो हैपेंस विद इन लाइक हर सिटी के अलग अलग शॉर्टलिस्टिंग. हाँ एग्जैक्ट, हाँ अलग अलग. मे बी यू आर फॉर दिस, और मुंबई इतना बड़ा है तो यू आर फ्रॉम साउथ मुंबई और नॉर्थ मुंबई, से होता होगा. दैट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी टू हियर. एंड रणवीर जी के साथ पहली बार काम करने में कैसा लगा? So I was so excited and nervous at the same time. मतलब I was like, अरे मैं I will look at him and I will freeze, because of course he's such a big star, and that time also he was a very big star. So there was the first time I met him was we had this poster shoot. Poster for Jayesh Bhai Jordar, and that's when I met him. And apparently somebody told him कि ये बहुत एक्साइटेड है आपको मिलने के लिए, एंड शी इज़ वेरी नर्वस. तो आई वॉज स्टैंडिंग एंड ही केम फ्रॉम बिहाइंड एंड ही हग्ड मी, एंड आई वाज सो शॉक्ड. आई वाज लाइक व्हाट इज हैपनिंग, मतलब ये कौन आ गया? एंड मैंने देखा तो इट वाज हिम, एंड आई वाज लाइक वाओ, ये क्या हो गया? देन ही वेंट, ही हग्ड शालिनी, लाइक द my mother in Jayesh Bhai Jordar. Then we did the whole poster shoot and everything. Still I was in my head, I was in that moment only कि मतलब ओ उन्होंने आके मुझे हक किया, मैं वही मोमेंट में थी पूरा पोस्टर शूट. Then we kept on meeting for table read, script reading, all of that, and then we started shooting. So your character required how many days of preparation? Like ऐसा होता है क्या कि you get some time to prepare for the role and then you start shooting? Yeah, for Jayesh Bhai Jordar, there were workshops conducted by them only. Achha. I had an acting coach, I had a dialect coach, because उसमें थोड़ा गुजराती accent चाहिए था. So dialect is basically कि मतलब वो accent के लिए आपको वो prepare करते हैं. तो वो workshops चली थी for 2 to 3 months. So it was a Gujarati character. Yeah, it was the family was Gujarati in the film. And they required someone who was good in that language. Yes, yes. So you are you are a Gujarati. Yes. So that is how you got this role. Yeah. The language helped you. Helped me definitely. Because I think audition के टाइम पे भी जो स्क्रिप्ट थी वो हिंदी में थी, जो ऑडिशन की स्क्रिप्ट थी, और उन्होंने बोला था कि आप ये गुजराती में ट्रांसलेट करके बताओ, एंड मुझे गुजराती आती थी तो आई ट्रांसलेटेड एंड आई परफॉर्म्ड, एंड आई थिंक दैट इज वेयर इट क्लिक्ड. वैसे भी गुजराती कमाल करते हैं, चाहे मोदी जी हो, अडानी जी हो, सब वही रूल कर रहे हैं. एंड दे हैव दिस काइंड ऑफ ह्यूमिलिटी which even Ranveer ji we can see within him. After being such a star, he still is such a humble person. He is, and that is a very rare quality, trait that anybody can have. So if I ask you any red flag, about any red flag that you have, like something which you can't digest, even in your dreams, what will that be? About me? Yeah. I think I just get very lazy sometimes. And the
व्हाट आई मेंट इज दैट कि रेड फ्लैग हो जाता है ना, कि जैसे ये चीज यू कांट, मतलब तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते सामने वाले से अच्छा, ओ आते हुए। सामने वाले की रेड हाँ, फ्लैग। सामने वाले से मतलब related। आप कौन से हिसाब से बोल रहे हो, लाइक कि- फॉर कि- फ्रॉम whom, फ्रॉम अ को-एक्टर और who? See, you belong to Gen Z generation, and you are surrounded with such boys who belong to the same category. अच्छा, रेड फ्लैग इन द सेंस इन अ, And there are few things which becomes like for them it is a joke, but for you it is a red flag. आई थिंक डिसरिस्पेक्ट, Disrespect. डिसरिस्पेक्ट मतलब you however you are with that person, Hmm. जोक में भी आफ्टर अ पॉइंट Hmm. डिसरिस्पेक्ट आ जाता है, मतलब रोस्टिंग करना एक अलग बात हो गई हाँ. और डिसरिस्पेक्ट करना एक अलग बात हो गई, तो वो डिसरिस्पेक्ट जहाँ आता है आई डोंट लाइक इट। तो ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो गर्ल्स आर हैविंग अ टफ टाइम इन इंडिया रिलेटेड टू बॉयज? I think loyalty. Hmm. Like in this generation, what I have seen is everybody is cheating on everybody. हाँ. It is just not right, and still it's happening. Hmm. So I think this is something that girls face a lot. Hmm. मतलब उनको पता भी नहीं होता, and he's talking to like other people. And other red flags is again like सबके सामने disrespect करना, हाँ. कि मतलब if you're in a group of people, you still Hmm. disrespect your Correct. person, and that's not right. I think yeah, these are the main aspects जो नहीं होनी चाहिए, and फिर basic वाली तो आ ही जाती है। हाँ. Because what I can see in today's time, which is to be ridiculed completely, is Eve teasing. Because it is going on since generations. Yeah. Or Eve teasing is something which requires people to understand that this cannot be liked by anybody. अगर लड़के को भी आप 2 मिनट तक देखोगे ना घूर के, तो वो लड़का भी बॉदर करता है हाँ. कि आप घूर क्यों रहे हो. And boys have this tendency to object, Yes. and girls don't object. They don't object. That is And the that is biggest the problem. problem. Exactly. और ये ऑब्जेक्शन नहीं होने की वजह से ये ईव टीजिंग बढ़ा है. बड़ा है। So हर जगह जाओ आप, लोग करते ही है, मतलब it's become very normalized now, Yeah. which is not right. And even flirting and roasting and teasing girls like in a public place, which should not be the case, Which, but yeah, it is It's happening. still happening. Or I don't understand this kind of nasty thing can be considered as a courageous thing. कि हाँ. Mistreatment and misinterpreted like a courageous thing. ये किस तरह की एजुकेशन सिस्टम है या किस तरह की पेरेंटिंग है जो लड़कों को इस लेवल पे लेके जा रहे हैं कि उनको ऐसी चीजें करके, ईव टीजिंग करके, किसी लड़की को छेड़ के ये महसूस होता है कि वो कितने बोल्ड हैं. I think it's not the parenting. I think it's the surroundings. मतलब जो लड़का अगर वही ग्रुप ऑफ लड़कों में है जहाँ सब वही कर रहे हैं, तो वो भी वही करने वाला है, जितना भी अच्छा हो, उसका घर जितना भी अच्छा हो. I feel after a point it becomes a lot about peer pressure. कि अरे सब कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूँ. That's an important revelation. Because people don't understand this fact कि आपकी जो संगत है उसका बहुत प्रभाव मैटर पड़ता है. And we normally blame the parents or the teachers. Yeah. ये एक चीज़ है जिसपे obviously यूथ को सोचना चाहिए, समझना चाहिए. Because it is a disturbing thing. Because जो करते हैं उनकी भी sisters हैं, उनकी भी mothers वो हैं, सोचते ही नहीं है उनकी ना. family. So still something like this और is ये happening. वैसी एक एज में होता है ना जहाँ तुम नहीं, लाइक यू डोंट थिंक अबाउट योर पेरेंट्स. तुम नहीं सोचते हो कि मेरे पेरेंट्स ने क्या सिखाया है. और जो एक होती है ना खुद का कॉन्शियंस होता है कि मतलब मुझे ये नहीं करना चाहिए, दिस इज नॉट राइट, बट स्टिल पीपल डू इट बिकॉज वो इतना स्ट्रॉन्ग कभी हुआ ही नहीं, बिकॉज एवरीबडी अराउंड यू इज डूइंग इट, तो इट डजंट मैटर. तो फिर वो हो ही जाता है. अभी जैसे कल तो फाइनल था, अभी हाँ. ऑब्वियसली हमारी ऑडियंस भी उस हैंगओवर से उतरी नहीं है. होगी. और कल तो विराट कोहली जी जीत as always has rocked. So I was also expecting कि RCB जीतेगी. Of course. They made it again. और कल का तो माहौल ही ऐसा था कि everybody was into this match. Yeah. I was even expecting, I was मतलब trying कि कल ही मैं पॉडकास्ट करता. अच्छा, But then लेकिन मेरे को हाँ. लगा कि मैच कल तो के सब में busy सब, हो गए, हाँ. तो I should not bother the guest also. पर लेकिन अच्छा मैच हुआ. तो you हाँ, watch अच्छा था. IPL?
I did yesterday. अच्छा I am not that into cricket, but I did yesterday. I went to a friend's house, screening था उधर, हाँ तो हमने देखा साथ में मैच. अच्छा अदरवाइज हमारी हम्म. ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि व्हाट आर योर इंटरेस्ट एरियाज हाउ डू यू हम्म. स्पेंड योर टाइम वाइजली I think I love like of course social media तो है ही. तो रील्स वील शूट करने में ही मतलब तुम अगर 4-5 रील भी करने जाओ पूरा दिन निकल जाता है उसमें ही. So somewhere that, and I love hanging out with my friends as well. तो मतलब we go to different places, we try different places out, we go to cafes, we go bowling and stuff like that, because मोस्टली तो मेरा अगर काम है या फिर ऐसा कुछ है तो वो तो पूरा दिन उसमें ही निकल जाता है मेनली. एंड दूसरा समथिंग दैट आई लाइक टू डू, आई लव फूड. So yeah, so I love trying new places, like new cuisines also. I love going to different restaurants and eating and trying out stuff. So होता क्या है कि आज की यूथ ना बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड है. और इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड एक रील आई थी जो प्रशांत सर हैं, ही इज अ फेमस टीचर और इस यंग जनरेशन के तो वो स्टार हैं टीचर्स में, प्रशांत सर. तो उन्होंने एक रील भी लाए थे जहाँ पे ही मेंशन्ड अबाउट द फैक्ट कि 13+ इयर्स के जो टीनेजर्स होते हैं, इट इज एन एज विच इज वेरी like exposed to distraction. कि बहुत जल्दी वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उनके मल्टीपल गोल्स होते हैं, वो हसलिंग में सोचते हैं कि ओवर थिंकिंग करते हैं और अपने पेरेंट्स से दूर होते जा रहे हैं, फ्रेंड्स के करीब होते जा रहे हैं. और ये एडिक्शन जो है इसका प्रभाव बहुत इतना ज़्यादा पड़ रहा है कि दे फील लोनलीनेस विद इन देमसेल्फ. कि मान लो अगर किसी का सर्कल अच्छा नहीं है और वो लोग हेल्प भी ले रहे हैं तो वो सोशल मीडिया की हेल्प ले रहे हैं, एज एन इफ दे आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट एनीथिंग, तो वो सोशल मीडिया में स्क्रॉल कर करके अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं. एंड दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि ये जो सोशल मीडिया रील है और ये जो एडिक्शन है, हाउ मच इट इज हार्मिंग देयर हेल्थ, मेंटल हेल्थ स्पेशली. Because that is why I asked you कि you being the representing the younger generation, how much time do you spend online? I do watch reels, I am not going to lie, but it's not excessive. Like एकदम but हाँ ये बहुत common तो है, मतलब everybody scrolls reel till like 3-4 o'clock in the morning and it's just मतलब बहुत हो गया ये. मतलब personally तो इतना नहीं होता है, अगर आई एम फ्री तो कभी कभी लाइक हो जाता है डूम स्क्रोलिंग, तो चलता ही रहता है. बट हाँ ये बहुत डिस्ट्रैक्शन तो है. मतलब इफ़ यू आर डूइंग सम वर्क, तुम्हें कंटाला आ गया, तुमने चालू कर दी रील्स एंड इट्स नेवर एंडिंग. वो तुम स्क्रोल करते 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 वो कब क्या हो जाए क्या बता. क्योंकि मैंने कहीं देखा कि ये चीज एक स्पीडी रिजल्ट की वजह से आता है कि हम जो भी चीज में डोपामिन ढूंढते हैं, चाहे वो अल्कोहल हो या सिगरेट हो या कोई भी सब्सटेंस अब्यूज हुआ, या फिर अब ये मोबाइल फोन नया है, इन चीजों की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें रिजल्ट फास्ट चाहिए. अब जब हम पोस्ट करते हैं और हमें जब लाइक्स तुरंत मिलता है तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन वो जो अच्छा लग रहा है ना, इट इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम इन द माइंडसेट कि हमको जब तक जल्दी प्लेजर नहीं मिलेगा ना तब तक हमको सुकून नहीं मिलेगा. एंड होना उल्टा चाहिए कि जैसे बुक रीडिंग हम कर रहे हैं, बुक रीडिंग इज अ लॉन्ग प्रोसेस कि हम अगर 1 साल तक पढ़ लें तो बहुत बड़ी बात है कि हम रेगुलरली पढ़ रहे हैं. बोर हो जाता है ना फिर, और उसका रिजल्ट भी लॉन्ग टर्म पढ़ने के बाद ही आता है. पहली बुक में तो नहीं आ जाएगा. हाँ, इफ यू अंडरस्टैंड द यूटिलिटी की बुक रीडिंग का वर्थ क्या है, वो आपकी पर्सनालिटी को किस तरह डेवलप कर सकता है, वो आपको कैसे आगे बढ़ा सकता है, वो आपको रियलाइज तभी होगा जब आप कुछ महीनों तक वो करोगे. लेकिन सोशल मीडिया का ऐसा अभी, और इवन आई हैव हर्ड कि ऐसा कंपनी भी ऐसी हो जाती है, सराउंडिंग्स ऐसे हो जाते हैं कि पीपल वो टॉन्ट मारते हैं कि तू स्नैपचैट में नहीं है, तू इंस्टा में नहीं है, तो पोस्ट नहीं करती है. तो such things are also there. Definitely I think सबका attention span बहुत कम हो गया है. Like in this generation attention span ही कम है, मतलब focus नहीं है. हाँ, कि मतलब तुम long term एक चीज पे नहीं हो सकते हो. हाँ, it's like तुम्हें
you want different things, you don't have attention span कि मतलब 2 सेकंड की रील, अगर 10 सेकंड की भी रील है उसमें से 2 सेकंड देख के स्क्रॉल, 3 सेकंड देख के स्क्रॉल. So it's, I think the attention span is the problem, and the thing that you said, dopamine सब चीज में ढूंढ रहे हैं सब. Like now I think yeah there are people who read books, ऐसा नहीं है, but very less people who you know find utility as you said in books, क्योंकि it's not instant, no, it comes after a point. मतलब वो थोड़े टाइम के बाद तुम्हें समझ आती है कि ओ ये मैंने पढ़ा था, या फिर you know I have the knowledge of these things. And if somebody in this generation can actually understand कि इसका रूट कॉज क्या है, तो वो हर चीज को कंपेयर करेंगे ना, तो समझ पाएंगे कि एवरी बिजनेस इज रिलेटेड टू एडिक्शन. अब देखो, पहले टेस्ट मैचेस हमें बहुत पसंद आते थे, ठीक है, सचिन तेंदुलकर जी के टाइम. फिर अपन आए 50 ओवर्स के मैचेस में, वो हमें पसंद आए. फिर T20 का आया. एंड इवन इफ यू फोन का देख लो, क्रिकेट देख लो, और अल्कोहल देख लो, और एनीथिंग व्हिच इज लाइक becomes addictive over a period of time. उसका रीजन ये है कि उसको एडिक्टिव ही बनाना है. इसको शॉर्ट टर्म में इम्पल्स क्रिएट करना है, और वो एडिक्शन इतना ज्यादा हो जाएगा कि you can't even think of leaving it. So products are designed in that manner, and what is surprising is that people are not understanding. People get caught into it also. कि मतलब people वो फंस जाते हैं उसमें. मतलब ऐसे तो बताएंगे कि हम कितने कूल हैं, हमें सब कुछ पता है, we have figured it out. लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो हम फिगर आउट नहीं कर रहे हैं. किसी ना किसी चीज से हम भाग रहे हैं. It's very I think लोग ये समझ ही नहीं रहे हैं कि जो भी चीज़ों से वो एडिक्ट हो रहे हैं वो उनके लिए हार्मफुल है. एंड आई थिंक इट्स ऑल्सो कि उनको पता है कि वो उनके लिए हार्मफुल है, बट दे डोंट केयर. मतलब ये मुझे इसमें मज़ा आ रहा है तो मैं आई विल डू दिस. उसका कारण भी रूट्स में है. if the kid is looking at their father, कि वो कितना भाग रहे हैं पैसों के पीछे, उनके लिए पैसा ही सब कुछ है, उनकी जर्नी सिर्फ पैसों के पीछे ही है, उनको जो किक मिलती है जीवन में वो पैसे से ही मिलती है. वो अपने फैमिली को सेकेंडरी बना सकते हैं एक बार के लिए, लेकिन पैसे को नहीं बना सकते. तो बच्चा वो ही करता है जो वो देखता है. जो पेरेंट बोलते हैं ना वो बच्चा नहीं करता. एक्शंस मैटर मोर. हाँ. सो इट्स लाइक इवन इफ वी टॉक अबाउट मदर्स, मदर को पसंद है अच्छे शॉपिंग बैग्स. हाँ, शॉपिंग करना एक मैंडेटरी चीज हो गई है. शी वांट्स अ गुड लैविश लाइफ, शी वांट्स अ वेरी हैप्पी लाइफ. मनी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हिच ड्राइव्स हर. वो बच्चा कभी मदर को ऐसे नहीं देखता कि वो चुपचाप ऐसे बैठी है फॉर 5 minutes एंड विद इन हरसेल्फ शी इज गेटिंग पीस बाय सिटिंग अलोन इन सॉलिट्यूड. शी इज गेटिंग पीस. ऐसा तो कोई बच्चे ने देखा ही नहीं ना. उसको भागते हुए देखा है. कुछ करना है, हमेशा कुछ करना है. तो बच्चा जो देखता है उसको भी यही रहता है कि यही जीवन है, हमें भी इसी तरह आगे बढ़ना है, और यही सक्सेस का मंत्र है. So true. So if one does not understand the reality कि हम कहाँ डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं, तो दिस विल कंटिन्यू जनरेशन टू जनरेशन. इट विल, ऑफ कोर्स इट विल. मतलब जो देखेगा वही करने वाला है. तो फादर डिड इट विद हिज डॉटर, डॉटर विल डू इट विद हर चाइल्ड. तो ये चलता रहेगा. तो ये जैसे हम बोला जाता है कि बॉलीवुड में एक अलग तरह की बात फैल जाती है कि पीपल आर नॉट सो अपडेटेड विद द करंट अफेयर्स. ऐसे जोक्स भी आ जाते हैं कभी कभी. कुछ मीडिया वाले सवाल एकदम से पूछ लेते हैं कोई इन्फ्लुएंसर से या कोई सेलिब्रिटी से कि हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका. ठीक है. और मे बी हु इज द next like who is the president of India. इस तरह के सवाल जब पूछ लेते हैं तो they are just caught up. तो ऐसा बोला जाता है कि people are not informed. जो celebrities हैं, जो influencers हैं, they are just looking after their physical appearance, अपने beauty में दिमाग लगा रहे हैं,
एवरी टाइम दे आर सराउंडेड विद फ्रेंड सर्कल, एक कूल लाइफ, एक लाइफस्टाइल बन Yeah. चुकी है कि हमें रोज पार्टी भी करनी है, हमें समय इतना बिताना Socialize होगा, सोशल मीडिया करना है। वगैरह, फोन में मैसेजेस भी करना है, फोन में अपडेटेड रहना है भले ही हमें। तो व्हाट डू यू थिंक कि ये चीज चेंज हो रही है या ये चीज ऐसे ही चल रही है, आगे भी ऐसे ही आई थिंक चल रहा है? चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं है चेंज नहीं हो रहा है. Like after the famous incident of Alia Bhatt from Coffee with Karan, ki she didn't know I think after that, people are scared of trolling. People are scared of being trolled. So now people are getting knowledgeable. मतलब वो ले रहा है, ये उनको पता चल रहा है कि मतलब ये कितना इम्पोर्टेंट है जानना ये सब, कि दुनिया में क्या हो रहा है वो भी आई थिंक जानना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने पूछ लिया तो आई थिंक द मेन थिंग इज कि ट्रोलिंग से डर लगेगा. अभी वो रिसेंटली हुआ है, वही, हाँ, लाफ्टर शेफ में भी हो चुका है. लाफ्ट किसके साथ? तेजस्वी के साथ. ओह, So she was being asked कि who is the chief minister of Tamil Nadu? So she said Allu Arjun. Oh my God. So it was an embarrassing situation for her. But what is important to understand that the embarrassing situation is being brought up by us only. Yeah. Because we are just focusing on things which are not so relevant, which are not so important in life. लेकिन हम उसके पीछे इतना भाग रहे हैं कि हम जो सेंसिबल वाइज चीजें हैं उस पर थोड़ा सा नहीं भी ध्यान फोकस दे नहीं रहे हैं. एंड इन अ वे इससे हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री की ही बदनामी होती है. हाँ, because they are only getting embarrassed, people are laughing on them only, they हाँ. are getting trolled. Yeah. वही हो रहा है उनके साथ. एंड आई थिंक बाहर की भी नॉलेज रखना इज इम्पोर्टेंट. इट्स नॉट ओनली अबाउट द इंडस्ट्री और देमसेल्व्स, और दूसरों की नॉलेज रख ली या जो भी राइवल्स है या जिनकी भी नॉलेज रख ली. आई थिंक दुनिया की भी नॉलेज रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. और वो इट of course saves you from embarrassing moments, and it also shows ki you are not only about yourself. You are also about the world or the country or whatever. अभी तो रिसेंटली रणवीर जी बहुत फेमस हो गए, और एक और मुद्दा भी कंट्रोवर्शियल हो गया है कि उनको बॉलीवुड से बॉयकॉट कर बैन कर. हाँ, मैंने भी सुना था. हाँ, एंड इवन दिस फाइव जो ऑर्गेनाइजेशन है, दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज कम टुगेदर एंड दे आर जस्ट मेकिंग श्योर दैट नो टेक्नीशियंस, नो सपोर्टिंग पीपल हु वर्क्स अलोंग, जो बैक एंड पे जो काम करते हैं, वो सब लोग कोई भी रणवीर जी की मूवी के साथ जुड़ेंगे नहीं. हाँ, तो इस तरह का मसला अभी चल रहा है. And something like this with such an established actor is very awful, because we have seen his growth, we have seen his journey, and he deserves all the success that he has got. Definitely. And it also because I have seen him since movies like जो अनुष्का जी के साथ मूवी हुई थी, बैंड बाजा वाला से लेके अभी तक धुरंधर. I've seen his growth, I've seen the discipline in him. The variations in roles that he does. Yeah. Like it's always something different. Absolutely. It's not the same role always. So, it's commendable. So when you see such news coming up, so what was your primary reaction to it? It's sad. It's just sad how something like this is happening. मतलब इतना massive step is not necessary. Right. Like if there is some mistake done by him, there are things there are other things that can solve it. Exactly. और वो I think वो solve करने के लिए उन्होंने भी कुछ किया है to make up for his mistake. But it is just sad that he's so talented. He's just so talented that something like this is very, very, very sad. Now it is like complementary to each other. The रणवीर जी को बॉलीवुड जितना चाहिए, बॉलीवुड को भी रणवीर जी उतना ही चाहिए. Yes, yes. So it is that way. Yeah. So one should value that, and one should start behaving in a professional manner that way that the media cannot play around with it. Because होता तो यही है ना कि जब आप एक अच्छी उड़ान कोई उड़ लेता है तो फिर उसको आप खींचने की कोशिश करते हो. That is not justified actually. And even Salman ji also
told about and intervene into this matter कि sort out हो जाए हाँ inside में ही कि हाँ इतना ज़्यादा फैलाना नहीं चाहिए. हाँ So we have wise people in the in Bollywood industry yeah. also who are taking good decisions. So like success की क्या परिभाषा है for you? I think success तुम्हें जब मिले ना it should not get into your head. मतलब वो एक हो जाता है ना कि ओ नाउ आई एम सक्सेसफुल नाउ तुम सब मेरे नीचे हो लाइक होता है ना कि लाइक विथ नॉर्मल पीपल होता है ना कि यू बी लाइक तुम्हें वो एक बात का एटीट्यूड आ जाता है या तुम्हें एक बात का घमंड आ जाता है कि आई हैव डन सो मच इन माई लाइफ आई हैव रीच टू अ लेवल कि नाउ यॉल आर नथिंग मतलब द नॉर्मल पीपल मतलब लाइक फॉर एग्जाम्पल क्रू ले लो ऑन अ सेट क्रू ले लो या को एक्टर्स ले लो हु आर नॉट एज फेमस एज यू इट बिकम्स अ फैक्ट कि like you are not as famous as me so I will show you attitude. I think that should not happen when a person gets success. मतलब success इसके लिए तुम्हें नहीं मिली है success तुम्हें इसीलिए मिली क्योंकि तुम talented हो या तुम अच्छे artist हो इसीलिए तुम्हें मिली है not to do all of this. So success should not get into your head is what I think. Because I have seen Shah Rukh ji. Yeah. He is the perfect example to accept success in a very humble manner. way. Yeah. Otherwise बहुत कम लोग होते हैं जो सक्सेस पाने के बाद उसी माइंडसेट के साथ काम करते हैं. People stop taking work. Yeah. People start taking selective work. Yeah. But he was a person who was always like somebody who is always craving for work. So and he has also spoken about all this in all his interviews कि आपको अगर काम मिले उसकी इज्जत करो. Correct. उसमें आप ग्रांटेड मत लो. Correct. सही बात है. बहुत कम लोगों को काम मिलता है. Correct. और अगर आप फिर भगवान नाशुक्र हो जाते हैं कि लाइक तुम अगर कदर नहीं है तो तुमको और काम क्यों दिया जाए. Correct. So that is something which has to be learned by the youngsters. So now if I ask you like regarding your future plans because you are also observing the trends going on. Yeah. And web series अब आने लग गई. OTT इतना famous हो गया. अब तो बहुत सारी opportunities हैं in the industry to excel. पहले इतना नहीं था. So what is one stream which you are actually focusing upon? I would really like to work in a web series. Like क्योंकि अभी OTT इतना चल रहा है ना कि films तो always I would love to work, but I think I really want to do a web series, like a very good web series. I always had this fascination with action films and web series, and I look forward to doing something like that. मुझे बहुत मतलब जब जयेश भाई जोरदार में also there was this scene where hospital के सामने मैं खड़ी हूँ like with like 10 पहलवान्स behind me और तब वो Baman Irani sir comes in and then there is a whole fight. So when I saw that fight being shot उसमें वो लोग हार्नेस लेके एक जन को उड़ा रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं. It was so fascinating that I would love to do something like that. Plus being a woman oriented action film or like a web series, it's like have you seen Citadel? Priyanka Chopra's action thing. Yeah, but it's basically action oriented, something like that I would love to do. And other roles always in for that, but this is something that I look forward to. Because Priyanka Chopra has been a beacon of strength for the industry. Yeah. Lara, like Tomb Raider was a movie which came years back, and a Hollywood actress was there, and Angelina Jolie. Okay. She was there. So पहले ये होता था कि हॉलीवुड में ही एक्शन मूवीज की बात होती थी, वुमेन ओरिएंटेड मूवीज की बात होती थी. But actress like Priyanka Chopra and Sushmita Sen and these actresses when they started taking such projects, तो फिर एक creation हुआ, एक ecosystem create हुआ कि girls can do such movies, action films as well. Yeah. And obviously there should be such opportunities coming up. Exactly. Yeah. And that now it can be expected because
जैसे आदित्य धर है, इन्होंने इतनी इंटरेस्टिंग मूवी धुरंधर के रूप में लेके आए. So now we have good filmmakers, intelligent filmmakers who are working on script, who are making sensible movies, who are even thinking of women-oriented movies. So that is something which is required also. Required, yes. Because पहले तो सिर्फ मेल ओरिएंटेड ही आती थी, एंड इट वाज अ मेल ओरिएंटेड इंडस्ट्री एज वेल. आफ्टर अ पॉइंट वो थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है, which is very important to happen also. So Zia, what is the difference between a boy and a man, according to you? I think a boy is somebody who is very like excited or very restless. Like if there is a situation, they don't think calmly. Like it's a very speedy action, और एक solution ढूंढो, कुछ भी कर लो just to solve it. Temporary solution हो, आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में नहीं सोचते, या consequences के बारे में नहीं सोचते. A man is somebody who thinks about those things, thinks calmly, takes a second to himself and then thinks कि you know अगर मैं ये करूँगा तो आगे क्या हो सकता है, या ये इसके बारे में किसको नुकसान हो सकता है, या whatever. Like just to think about things before doing it, I think would be the difference between a boy and a man. That's a very valid point, and it like surprised me also with your answer, because हमारी audience भी सुनेगी तो they will get inspired that at such a young age you have such viable thoughts. Thank it's you. really good, and it shows that we are going in the right direction. So now if like somebody asks you about the problem in Indian parenting, if somebody can ask you like 2 to 3 points which you feel कि Indian parenting में गलत है, जो मैं तो as a parent कभी नहीं करूँगी, तो वो क्या होगा? I think it would be restrict करना, to restrict your kids, or to not talk to them as a friend after a point. Like for me, luckily, touch wood, my relationship with my mom is as friends. Like we are as sisters. That we talk about everything, about boys, about work, about everything, and it's been like that since I was in teenage, because of course बच्चों के साथ तुम क्या ही बात करोगे. So it has always been like that, and I think that should be a parenting style. मतलब ये जो parent होता है ना, जो restrict करते हैं कि नहीं तुम्हें नहीं जाना है बाहर, तुम्हें ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तुम सिर्फ बैठ के पढ़ाई करो, and all of that, and they don't try to understand your point of view as a child or as a kid, which is very wrong. And then you know what happens is वो बाहर जाके वो support ढूंढते हैं, and they go out in their friends probably, और अगर friend group अच्छा नहीं हुआ तो in somebody else, and because of that they go into the wrong direction, or they can get into a wrong place or a wrong company, which is what something that every parent should do, is that they should talk to their children, or they should understand what they are trying to say. तो फिर तुम्हें भी ऐसा लगता है ना कि as a child कि oh I should go tell mom or I should go tell dad about these, because they understand me, और मतलब मुझे जाने देते हैं, and open to communication हो जाता है. हाँ, and I think वो एक एक्सपोजर भी वेरी इंपॉर्टेंट है. तुम अगर वो बच्चे को घर पे ही रख रहे हो तो फिर वो कुछ सीखने ही नहीं वाला. सोशल नहीं बनेगा. एग्जैक्टली, वो एक्सपीरियंसेस इज व्हाट यू लाइक, व्हाट हेल्प्स यू लर्न इन लाइफ. एंड ये कुछ तो है कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनको चाहिए आज्ञाकारी बच्चे. हाँ, they don't like rebellious kids. और अगर आप रिबेलियस बन गए तो दे विल स्टार्ट डिस्क्रिमिनेटिंग. हाँ, कि वो बच्चा तो कितना अच्छा है, तुम तो अच्छे नहीं हो. कंपैरिजन चलने लग जाता है. हाँ, एंड फेवरेटिज्म इज आल्सो देयर विद इन सिबलिंग्स. हाँ, कि अगर जो मेरी बात मानता है तो वो मेरा अच्छा बच्चा है, उसकी तो मैं सारी बात मानूंगा, और जो रिबेलियस है उसको मैं ह्यूमिलिएट भी कर दूंगा 4 लोगों के बीच में. सो दिस कंपैरिजन बिटवीन सिबलिंग्स, कंपैरिजन बिटवीन कि पड़ोसी का बच्चा देखो कितने महान काम कर रहा है और तुम क्या. सो दीस थिंग्स दिस शुड नॉट हैपन. मोरल बहुत गिराते हैं. हाँ, वो तुम्हारा सेल्फ एस्टीम ही नहीं रहता ना, कि मतलब मेरी मम्मी को तो मैं कुछ अच्छी नहीं लगती, या मैं वही अच्छा है, कि वही लाइक
because he is listening to him or she is listening to him, she likes him. बट फिर वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि तुम्हें छोड़ना थोड़ा बच्चों को टू गेट लाइक सो दे कैन एक्सपीरियंस देयर लाइफ और उनसे वो सीखे. हैव यू एवर फेल्ट कि फादर्स जो होते हैं उनकी हेल्पलेस सिचुएशन होती है? आई थिंक समटाइम्स क्योंकि तुम काम में इतना वो हो जाते हो दैट इफ यू वांट टू आल्सो स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली तुम कभी नहीं कर पाते हो. एंड दिस हैपेंस बट आई फील कि तुम्हें वो टाइम निकालना ही चाहिए. मतलब लेकिन क्या वाइफ या बच्चे उनको ये प्रेशर देते हैं क्या कि अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, अपने सपनों को मत देखो? एज ए इंडिविजुअल पर्सनालिटी फादर की भी सपने होते हैं, राइट? फादर के लिए इंडिया में इस तरह का एक क्रिएट किया गया है, एक इमेज क्रिएट की गई है कि ही इज बोर्न टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रिस्पांसिबिलिटीज. ब्रेड एंड बटर के लिए हो तुम, तो वो करोगे तो तुम एक आइडियल फादर हो. और नहीं करोगे, अपने बारे में थोड़ा सा भी सोच लिया तो तुम गुनहगार बन जाते हो. तो हैव यू एवर रियलाइज कि विद इन दिस इंटायर कल्चर जो क्रिएट हो चुका है, इसमें फादर्स एक हेल्पलेस सिचुएशन में पहुंच जाते हैं ना, क्योंकि सोसाइटी का इतना प्रेशर है. इट्स नॉट योर फैमिली. योर फैमिली तो कितनी भी सपोर्टिव हो, सोसाइटी का प्रेशर हो जाता है कि बट इफ you are as a family and if you're very strong as a family you don't care about the society after a point. After a point it's like कि हम मतलब who are you to say anything to my family? Are you giving anything to my family? मतलब आप तो कुछ नहीं कर रहे ना मेरी फैमिली के लिए, हम कर रहे हैं, हम मिल बांट के कर रहे हैं, तो what is the society's problem? बट हाँ वो हो जाता है कि सोसाइटी का इतना प्रेशर हो जाता है ना कि फादर्स यूजुअली कम टू हेल्पलेस सिचुएशन. बट तुम्हारी अगर मदर्स मैटरनल फैमिली को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं क्या? ज़्यादा इम्पोर्टेंस मैटरनल फैमिली को देते हैं, अपनी फैमिली को, अपने मम्मी पापा को, अपने भाई को, बट डू यू कंपेयर टू हर पार्टनर? बट डू यू थिंक इट्स फेयर दैट डू यू थिंक ऐसा करते होंगे वो? मतलब ऑलवेज नो, क्योंकि तुम उधर से पले बड़े हो, you've been born there. When they have created a family of 3 people, 4 people, husband, wife, 2 बच्चे, they have created their own family. This is after marriage, and husband has joined this family. Now, when all the decisions which would be taken after the marriage, it should be between all 4 of us. Nothing should be influenced by external parties. Yes, right? That is correct. Yes, I agree to that. Are you on the same page? Yes. है ना? तो लेकिन जब वो मैटरनल फैमिली का, उनके मम्मी पापा, मदर के मम्मी पापा और उनके भाइयों का इंटरफेरेंस होता है कि डू इट द वे वी वांट, डू इट द वे इज कन्वीनियंट टू यू, डू इट द वे इट इज फेवरेबल टू यू, रिगार्डलेस ऑफ योर हस्बैंड्स इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, उनके एम्बिशंस को, बिकॉज ऑब्वियसली if it is about the family, it is about the unity of the family. Yeah. It should be like-mindedness only. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो overshadow हो जाए. Correct. तो you think कि ये एक helpless situation में ले आते हैं? Because this I am telling you because एक recently अभी एक actor रवि मोहन जी ने एक press conference भी किया था, showing the helplessness that उनको अपने बेटे से मिलाया नहीं जा रहा है. करेक्ट. और वो बहुत टाइम से सफर कर रहे हैं. एंड प्रीवियसली बहुत हिस्ट्री में भी बहुत ऐसी सिचुएशंस आई हैं जहाँ पे फादर्स आर लाइक गेटिंग इनटू दिस ट्रबल की क्योंकि उनका डिसीजन मेकिंग नहीं होता, तो दे गेट इनटू वो एक मजबूरी वाली, एक बेबसी वाली फीलिंग में आ जाते हैं कि जब वो लोग सब लोग डिसाइड करेंगे तो उनका तो फिर बात अलग हो जाती है. मतलब it depends on situations, it depends on how तुम्हारा equation है within the family, but I agree to the fact that maternal influence नहीं होना चाहिए. If you are a family, you all should discuss it, the husband and the wife should discuss it, and they should they should make the decisions of the family. मतलब वो उनके paternal या maternal side से कुछ भी नहीं आना चाहिए, ना husband के side से कुछ आना चाहिए, ना मदर के साइड से कुछ आना चाहिए. इट शुड बी बोथ ऑफ देयर डिसीजन, क्योंकि इट्स देयर फैमिली, सो इट शुड नॉट बी द फैमिलीज डिसीजन. मतलब वो लोग की फैमिलीज का डिसीजन नहीं होना चाहिए. क्योंकि ये हो जाता है कि
जहाँ पे यू गेट काइंडनेस, जहाँ तुम्हें लव मिलता है, वहाँ पे आप खींचे चुंबक की तरह खींचे जाते हो। करेक्ट, ये बहुत ही स्वाभाविक है। हाँ, और अगर मैटरनल फैमिली से बच्चों को प्यार ज्यादा मिल रहा है, काइंडनेस ज्यादा मिल रही है, तो दे गेट अट्रैक्टिव दैट ओनली। यस, और फादर की ये प्रॉब्लम हो जाती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ही डजंट हैव एनी से इन द डिसीजन मेकिंग बिकॉज द इन्फ्लुएंस इज देयर, एंड सेकेंडली ही हैज टू मीट द रिस्पॉन्सिबिलिटी. So if you are not meeting the responsibility, if you are not doing what is being done traditionally, जो इतिहास में करता आए हो, अगर वो तुम नहीं कर रहे हो, you are like removed like a garbage. yeah, So you are not even treated in a human manner. तो that फिर is ऐसा unfair. No, that is unfair for the father as well. हाँ. मतलब उनकी भी कुछ हेल्पलेसनेस होगी या उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी which is what he is trying to meet, and this is not right. मतलब ये the influence should not be there, मतलब it should be their decision only, and ये नहीं होना चाहिए यार, मतलब it's just not fair for him, it's just not fair. Yeah, Because it was important to have a perspective from a person who has just started her career, yeah, who is in her teens, and understand, because you have seen your parents, you are seeing the society, how it is progressing, and as a young person, what kind of change you would like to bring, what is going wrong in the previous system. तो उस हिसाब से एक perspective was important from your side. change. So I would like to bring that if people are getting married, it's like it should be only them, like it Yeah. should not be any, because traditionally तो यही होता है ना कि the girl goes to the guy's family, and that's not fair for the girl. I feel it's not like, I'm not saying कि the guy should come to the girl's family, it should be that they should be them, like it should be alone, like they should be there, there shouldn't be any families involved. Like of course marriage and everything, हाँ ठीक है, understandable, but after they are married it's very unfair for the girl, but अभी वही होता आ रहा है, so It's a very debatable thing. In fact कि मैरिज भी होना चाहिए या नहीं, हाँ, और मैरिज होना चाहिए तो पेरेंट्स की मर्जी से होना चाहिए या वो इंडिविजुअल individual, हाँ correct, it is pretty debatable. बिकॉज इट्स लाइक अभी तक यही चल रहा है कि पेरेंट्स की मर्जी से होना चाहिए, ऑल्दो ये कहा जाता है कि ये ऊपर वाले की मर्जी से है, लेकिन सारे मुहूर्त सारी चीजें अच्छे से सब कैलकुलेशन करके हाँ. पेरेंट्स ही डिसाइड कर रहे हैं. तो ये तो एक बहाना है कि ऊपर वाले, अगर ऊपर वाले की मर्जी है तो वो तो इंडिविजुअली डिसाइड करेंगे ना. that is something which पेरेंट्स किधर ना किधर से तो आ ही जाते हैं. हाँ, so that is something I don't understand, but I'm sure हमारी ऑडियंस के पास कुछ पॉइंट्स होंगे तो वो जरूर कमेंट्स में I बोलें think so. इस बारे में. So if you get an opportunity to work in Hollywood, so do you have any such kind of aspiration? Yeah, why not? Who would not like to work हाँ, somewhere? It's actually a lot of exposure. Mostly for a global exposure, I think definitely I would like to work in Hollywood. मतलब कुछ होता अगर है ना कि offer we have such reservations कि हम तो बॉलीवुड में ही काम करेंगे, इंडिया छोड़ के नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ. नहीं, ऐसा as such कुछ नहीं है, but whatever wherever life takes you, it's like that. मतलब आ गया तो definitely would love to, मतलब depends on the script, the movie, the role. Because it is a thing which is being discussed कि हमेशा ब्रेन ड्रेन होता है कॉर्पोरेट में, और फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी लोग चले जाते हैं, बजाय उसको इंडिया को ही बॉलीवुड को ही हॉलीवुड के लेवल का बनाने की कोशिश नहीं होती. तो वो उसकी ज्यादा जरूरत है. मेक इन इंडिया स्टार्टअप्स जो हो रहे हैं, बट फिर वो अपॉर्चुनिटीज की भी बात आ जाती है ना, एंड दैट इज द पॉइंट कि हम हमेशा ये देखते हैं कि एक वैकेंसी है, उस वैकेंसी के लिए 143 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें से 1000 लोग को बुला लो, 999 लोगों का दिल तोड़ दो, वही है ना, एक को सेलेक्ट कर लो. अब 999 लोगों के लिए एक इकोसिस्टम क्रिएट करो कि उन लोगों को भी काम मिल जाए. करेक्ट. तो वी हैव नेवर वर्क टुवर्ड्स दैट एरिया कि सप्लाई साइड पे काम किया जाए. हाँ. हमने हमेशा ये देखा है कि जो है वो ये है, तुमको इसमें से लड़ना है, लड़ो और इसमें से अपना अंडा निकालो. हाँ. और जो नहीं है, you are You are losers. Like how can you say that?
दैट्स द थिंग, नो कि कि and even वो अपॉर्चुनिटी और वो सोचने भी लग जाता है कि आई एम अ फेलियर. So that is the problem with the entire lobby creation ecosystem which is required to be changed. अगर हम progressive बनना चाहते हैं तो even Bollywood has to think wisely कि हम ऐसा create करें system जहाँ पे ज़्यादातर लोगों को काम मिले. दैट इज माई पॉइंट, दैट वो एक अपॉर्चुनिटीज अगर मिल रही है तो बहुत लोग हैं इंडिया में who want to be actors, who want to work in Bollywood. There are so many people who want to go into this industry and are very talented as well. They can make the industry into something which is like Hollywood, as you said. But वही है ना कि opportunities मिले तो सब ready है. We have the ability. We have the ability, We have yeah. examples like recent Aditya Dharji, who has actually changed the dynamics of the Bollywood industry कि कैसे फिल्म मेकिंग करनी चाहिए. Agreed. तो अब तो ये क्लियर हो गया है कि we have the ability. It is just that we should work as a family. Yes, I think वही है ना कि अगर यूनिटी से टैलेंटेड एंड टैलेंट के बेसिस पे अगर तुम अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो देन इट कैन गो टू अनदर लेवल, Correct. which is what how how it should be. So how movies have helped your personality? कि movies एक movie you did उससे पहले how were you and how it changed you? I think it gives you a lot of confidence. It gives you a lot of confidence, especially being with such talented actors or being with such educated people, that you get to learn so many things as well. Correct. Like you get to learn how there are things that work, and I was very young when I started all of this, which is what, you know, those are the years which shape you to be a human. मतलब it shapes you, it shapes your personality कि तुम कैसे होगे, तुम कैसा करोगे and stuff. So it is what helped a lot, and you learn so many things. Like I remember this thing from Jayesh bhai. We were doing this scene, and so it was a over the shoulder shot. रणवीर सर का ओवर द शोल्डर शॉट था मेरे से, मेरा पीओवी था, एंड आई वाज लाइक मैं तो कैमरा पे नहीं हूँ तो आई विल नॉट एक्ट माई बेस्ट. मतलब आई एम जस्ट गोना गिव रेफरेंसेस, आई एम नॉट गोना एक्ट माई बेस्ट because I was a kid, I didn't know anything, and so I was giving very subtle things, and I was not, because मैं तो कैमरा पे नहीं हूँ तो मैं क्यों करूँ. It was for him, it helps him. So he took me to the side and then he was like, you know what, so there are, you know what makes a great actor is when आपका शॉट नहीं हो और तभी भी आप अपना बेस्ट एक्ट करो टू हेल्प योर को एक्टर्स, एंड दिस इज व्हाट आलिया भट्ट डज, अनिल कपूर सर डज, एंड ही टोल्ड मी ऑल ऑफ दोज थिंग्स एंड ही मेड मी लर्न लाइक दैट. So after that I was like, oh okay, this is how it works, and then I never thought about the fact कि oh मैं कैमरा पे नहीं हूँ तो मैं नहीं एक्ट करूँगी. I always did the same thing I did on camera, and then after that, so you get to learn so many things from such experienced people. It is like a rehearsal. Yeah. अगर मतलब अच्छा शॉट नहीं भी गया तो it will rehearse you for a better shot Next coming time. forward. Yeah. और it also shows कि जो अच्छे एक्टर्स बने हैं, जो सक्सेस को पा चुके हैं, they have some unique quality which differs them from other actors. और वो unique quality यही है कि they in extreme situations वो कैसे behave करते हैं. There are so many, like what makes them stand out, मतलब वो कैसे अलग है सबसे. वो तो है ही. So if a director is watching this podcast, so what kind of message you would like to share, like as an actress, and maybe like what challenges you face कि you would like to put across to any director, maybe like something as कि इस तरह के काम you want to do, या फिर ऐसी प्रॉब्लम्स हमें होती है कि हम आप तक अच्छे डायरेक्टर्स तक हमारा काम पहुंचा नहीं पाते हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं. आई थिंक द प्रॉब्लम्स एस्पेक्ट अभी क्या हो रहा है कि ऑडिशंस पहले ऑफलाइन होते थे, यू नो लाइक यू गो देयर और तुम ऑडिशंस दो एंड वो तुम वही शूट करते थे और वही बताते थे कि आपका यही आप इम्प्रूव कर दो या यही चेंज करना है, और वही टाइम पे आप चेंज करके दे देते थे. अभी क्या होता है, अभी ऑडिशंस ऑनलाइन हो जाते हैं.
लाइट्स वाइट्स आफ्टर अ पॉइंट तो तुम्हें नहीं समझ आता क्योंकि तुम्हारी मम्मी शूट कर रही होती है या हाँ। तुम्हारा कोई घर वाला शूट कर रहा होता है. तो एंड द थिंग्स दैट यू डू ऑल्सो लाइक यू एक्ट, उसमें भी अगर कोई चेंजेस है वो वीडियो तुम्हारा कब पहुंच रहा है, कब पता चल रहा है, यू डू नॉट नो एनी थिंग एंड वाई यू नॉट गेटिंग कास्टेड और वाई यू what is the issue, what is the thing that you can improve, वो भी तुम्हें नहीं समझ आ रहा है क्योंकि हाँ रिस्पॉन्स आता है कि बट कि if you are shortlisted, if you are selected, if you have to give a re-audition, but क्यों तुम नहीं सिलेक्ट हुए उसका कुछ नहीं आता. अगर शॉर्टलिस्ट नहीं हुए तो पता चल जाता है कि शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हो. नहीं वो नहीं होता, नो वो नहीं पता. अगर मतलब तुम जवाब नहीं आया तो मतलब ये समझ जाओ कि नहीं हुए हो, हाँ वैसा. एंड यू डोंट नो ना व्हाट इज मिसिंग, की रीजन क्या है, क्या तो कमी रह गई उस ऑडिशन में. हाँ ऑफलाइन में पता चल जाता है, ऑफलाइन में पता चल जाता है. ऑफलाइन में वो बताता है ना आपको, अगर जो शूट कर रहा है वो उधर ही बैठा वो होता ऐसे नहीं कहते कि हम बताएंगे. हाँ वही ऐसे बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं. फिर बताते हैं वही ना. ऑफलाइन में बताता कि कास्टिंग डायरेक्टर्स या उनके जो भी है वो उधर ही बैठे होते हैं, सो दे नो व्हाट दे वांट, सो दे कैन टेल यू कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो. तो फिर वो अभी तो क्या एक स्क्रिप्ट आ जाती है, एक ब्रीफ आ जाता है और वो तुम अपने हिसाब से कर दो. तो फिर it makes a lot of difference. So yeah, and if a director is watching me right now, I would love to work in films, web series, ads, anything that is going. I'm very confident on camera and I love acting, so I would love to do projects that if you have in mind, please contact. Anything which you are you can talk about your strength also, कि such kind of roles you can do it in a like. I think abhi tak whatever I have done have been very like bold roles, like very bindas kind of roles, and I have been very comfortable in that because I am like that personally. I am like that only. What I meant is कि कुछ लोगों को का एक strength होता है कॉमेडी, कुछ का इमोशनल. वही लाइक ऐसा कुछ है सीरियस रोल्स जो होता है ना कि इमोशनल रोल्स हो गया, या फिर सम रोल लाइक अगर आपने मेरी गुजराती फिल्म भी देखी होगी इतना कितना एंड रेश भाई जोधा, they were very similar roles, like very bindas, very outgoing and stuff. So that is, I do it very comfortably because that's how I am. हाँ bindas kind of, yes. But other roles also love to try because never got the opportunity, so don't know. Obviously. But like love to try. I'm very versatile like that. So this is the one thing which we have learned from Ranveer ji. You should be open to all the roles. All the kind of yes. roles. So how do you prepare for any audition? Preparation. Actually अभी जो भी online auditions are probably very short. मतलब वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो वो एक तुम्हारा स्क्रिप्ट देते हैं, एक ब्रीफ देते हैं, उनको तुम करके तुम्हें एक्ट करना होता है. तो फॉर मी पर्सनली तो वो स्क्रिप्ट अगर बड़ी हुई तो वो लर्न करना, दूसरा कुछ प्रेप ऐसा कुछ होता नहीं है. इट इज़ जस्ट दैट तुम वो देख के तुम अपने हिसाब से एक्ट कर रहे हो. फ्रॉम फिल्म एंड स्टफ देर आर थिंग्स दैट यू नीड टू डू बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ डायलॉग्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू डू. सो उसके वर्कशॉप्स होते हैं एंड देन यू नो हाउ टू डू इट. तो it makes a lot of difference. You were saying कि बचपन से you were fond for movies, camera conscious you were not there. Yeah, camera conscious I wasn't, but बचपन से तुम्हें कैसे पता होता कि तुम्हें क्या करना है when you were 6 years old? मम्मी observe करते थे. तो my mom wanted to be. Genes में है, mom में. हाँ, mom में है. Was liking movies and all. हाँ, so it was like mom only wanted me to do this. Okay. तो she, because I was very young, I was 6 years old. So she was like कि करते ट्राई तो करते हैं, एंड फिर वो करते करते आई वॉज नेवर कैमरा कॉन्शियस. मतलब बोलते हैं ना कि कैमरा पे जाके नहीं हो पाता है और ऐसा, बट आई वॉज नेवर दैट. सो इट वर्कड आउट. तो लाइक इट्स माई मॉम बेसिकली, मेरी मॉम ने ही करवाया है ये सब, उनसे ही आया है, उनसे ही ये चालू हुआ है. तो वही. सो हाउ डू यू मैनेज लाइक, क्योंकि होता क्या है कि हमारे कुछ सपने होते हैं और वो सपनों की एक तैयारी होती है, और ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत पेशेंस सिखाती है. इसमें ऐसा नहीं होता कि जैसे कॉर्पोरेट में तो आप हर महीने काम कर रहे हो तो यू आर ऑन. तो जब हम काम नहीं कर रहे होते हैं तब हम क्या करते हैं? हाउ डू वी कीप मूविंग? आर यू इनटू योर स्टडीज एंड एवरीथिंग, लाइक यू वांट,
डू यू थिंक कि बैकअप में मैं आई विल डू अ बिजनेस और कॉर्पोरेट जॉब इस तरह का Yeah. भी हैव प्लान? Yes. ऐसा नहीं है I'm कि यू आर always इनटू द इंडस्ट्री, यू आर इनटू No. मूवीज ओनली, ऐसा No, नहीं? ऐसा नहीं है. Because always you need to have a backup plan. It's very unpredictable. What can happen, what can not happen. You can never be certain ना कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है. तुम्हें you're going to be successful, you're not going to be successful. And plus मैंने स्टार्ट भी बहुत यंग एज से किया है. तो तब से ही आई एम अ स्टूडेंट ओनली. आई वाज 6 years, I was in school and still I am in college. So always been there for studying, and my mom has also been very rigid about the fact कि पढ़ाई तो करनी है, ये करना है, बट पढ़ाई तो करनी है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है. So पढ़ाई में also I have been very consistent. इट्स अ गुड मैसेज कि हमें बैलेंस रखना चाहिए. और क्या है ना कि मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि हम नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर को रोक सकते हैं इफ वी एक्चुअली गेट इनटू दिस, क्योंकि जो हिटलर था ना, हाँ. वो पेंटर बनना चाहता था. हाँ, ओके. ठीक है, हाँ. दिस वाज व्हाट ही ऑलवेज वांटेड टू बी, लेकिन वो पॉलिटिक्स में चला गया और फिर वर्ल्ड वॉर हो गया. नाउ द पॉइंट इज कि जब हम या तो हम क्रिएट करते हैं या हम डिस्ट्रक्ट करते हैं, ये दोनों में से एक ही चीज होगी. और हम क्रिएट तभी करेंगे जो चीज से हमें शांति मिलती है, हमें पीस मिलता है, जो हमारे लिए पैशन है. जब हम वो करते हैं ना जीवन भर, तब तो हम क्रिएट करते हैं. और अगर हमने कोई चीज ऐसी कर ली जो चीज हम जहाँ बिलोंग नहीं करते हैं, तो वी विल डेफिनेटली डिस्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं विद इन फैमिली मेंबर्स या अपने दोस्तों में या अपने खुद के साथ हम डिस्ट्रैक्ट करेंगे. हम सब्सटेंस अब्यूज ले लेंगे, हम सहारा लेंगे कोई चीज का, उससे बाहर तो निकलना ही है ना. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू समथिंग दैट यू लाइक. हाँ, एंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. मतलब तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें पसंद हो. अगर कोई फैमिली प्रेशर, हाँ, सोसाइटी जो भी प्रेशर दे, पेरेंट्स कुछ भी बोले, इट इज जस्ट अ मैसेज, सिंसियर मैसेज फ्रॉम माय साइड. इट इज अ मैसेज कि youngsters should always think about themselves, they should love themselves, and they should prioritize themselves. अपनी हेल्थ का ध्यान रखो और हमेशा अपने ड्रीम्स के साथ ही चलो. अगर if one have identified between the age of 10 to 20 कि they have a knack of anything, कि कोई क्रिकेटर अच्छा है, कोई बैट्समैन अच्छा है, कोई पेंटर अच्छा है, कोई सिंगर अच्छा है, कोई डांसर अच्छा है, कोई क्रिएटिव साइड में कोई जो भी अच्छा है, आपको यू शुड फॉलो दैट ओनली. अगर आपने दूसरी चीज कर ली तो आप गुलामी बनोगे. हाँ. और गुलामी अच्छी नहीं होती है. मतलब अगर वही होता है ना कि अगर आपको कुछ करना है और आप वो नहीं कर पा रहे हो पूरी जिंदगी, तो फिर तो वो खराब ही होना है, वो अच्छा तो नहीं होने वाला. हमारे दादाजी से, नानी से, सबसे आप पूछ लो कि उनका जीवन संतोषजनक रहा कि नहीं रहा, एंड दे विल डेफिनेटली टेल यू कि हम खुश नहीं थे, क्योंकि स्ट्रेस वही होता है ना कि तुम्हें ये करना ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ करना चाहिए, करना पड़ रहा है. So thank you, Jia. It was a very wonderful podcast, and I got to know you. It was things which were like a revelation. You made things surprisingly. You made pleasant things come across to me and to the audience. एंड आई एम श्योर हमारी जो यंग जनरेशन है जो आज की तारीख में बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, वो काफ़ी कुछ सीखेगी जिया से. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आई होप यू हैव अ वेरी ब्राइट लाइफ एंड यू बी द बिगेस्ट एक्ट्रेस इन बॉलीवुड. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. इट्स आवर प्लेजर. इट्स माय प्लेजर टू बी हियर. आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को भी ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा. आगे भी हम इस तरह के पॉडकास्ट लाते रहेंगे. आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि सिर्फ 50 to 55% लोग ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं. दे आर व्यूइंग दी वीडियोस बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं. तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें. आपके इस सपोर्ट से हमारा चैनल ग्रो करेगा. हम और गेस्ट को बुलाएंगे जो अपने विजडम से, अपनी नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से आपका मार्गदर्शन करेंगे. एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस में हर इंसान के बहुत सारे सपने हैं, जिन सपनों को पूरा करना ही उनकी जिम्मेदारी है और सपनों के अलावा कुछ और नहीं सोचना चाहिए. ये मेरी गुजारिश है आप लोगों से. सो स्टे ट्रू टू योर हार्ट एंड ड्रीम्स एंड फॉलो इट टिल द लास्ट ब्रेथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग द पॉडकास्ट. साइनिंग ऑफ फ्रॉम यूथक्वेक.
थैंक यू।